Good evening, friends, and welcome to this one more Saturday episode of I interviewing an alumni. Guys, trust me, I enjoy this process absolutely दिल से. There are a lot of reasons for that. I mean, honestly, बड़े बड़े तरीके से बोला जाए तो मैंने इन बच्चों को ऐसे देखा, आज मैं ऐसे देख रहा हूँ. So not literally in the sense of ऐसे देखा, but you can say when I saw them, they had just joined as students, maybe completed their basic education of undergrad, and then been a part of the family business, and then went into our course, and then they are परफॉर्मर्स टुडे जिन्होंने बिजनेस में बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स किए हैं सो दैट्स हाउ दीज पीपल आर हियर टुडे एंड आई एम इंटरव्यूइंग देम इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल प्राइड गाइस ट्रस्ट मी इतना अच्छा लगता है सो टुडे वी हैव आवर डियर वेदांश गुप्ता फ्रॉम इंदौर वेदांश इज एन इंजीनियर he did his engineering from USA and after that he came back to India and joined his family business whether he came back to India or he was brought to India that he will talk about. Okay, that's a wonderful smile that he's carrying. जिसको मालूम है क्योंकि twist आने वाले हैं. Let me talk the other side of it. Vedansh is a very, very capable son of a fantastic family, has been looking after the sales, and they are into the manufacturing of pulses, which is one of our basic raw material to eat food, but more importantly, multiple varieties. And he looks after business development. A fantastic individual, very cool hearted, nice boy, and one of the finest participant of the program, and that's Vedansh Gupta for you guys. Hello, Vedansh, good evening and welcome to this program. good evening, sir. And it's an honor to be even invited, sir. And नहीं I बेटा, really appreciate all your kind words, sir. you deserve it. You deserve it. मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ फैब्रिकेट कर रहा हूँ. You deserve it. You've been there, done there, and in fact I've seen you close by. So मुझे पता भी है like that. Okay. So guys, let's not waste time anything more, and we get on to the topic. And the topic, as I said, obviously interviewing Vedansh. Vedansh, my first question to you is, can you please share a little bit about you, a little part of your story about you, please? Sir, so in small words, basically, our family business is for 50 years. And fortunately, our factory was even very close to our house. तो बचपन से फैक्ट्री जाना रहता था and my dad is actually himself an engineer and in 1990 he transformed our entire industry into an automated one. तो Wow. pulses basically एक पुराने जमाने का काम था जिसको बहुत बेसिक लेवल पे करते थे बट माय डैड ही आल्सो लाइक ही वाज एन इंजीनियर तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया था एंड ही वाज अ वेरी एक्टिव इंजीनियर ऐसा नहीं कि बस कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया ही वाज वेरी इन्वॉल्व तो जब फैमिली के अंदर ये सारा सिस्टम बना हुआ था तो एक बेसिक एज से ही इन सब चीजों में डेवलप इंटरेस्ट डेवलप हो गया था तो आई यूज टू गो टू फैक्ट्री विथ माई डैड एंड एवरीथिंग तो वहीं से मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत शौक लग गया बिकॉज डैड इज अ वेरी गुड इंजीनियर एंड उन्होंने बहुत सारी मशीनें खुद ने भी फैब्रिकेट करी है Okay. तो वहां से मैं एजुकेशन का जो पार्ट था मुझे खुद को लगा कि एजुकेशन का क्या वैल्यू रहती है बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उस समय के जो इंजीनियर्स थे वो नहीं समझ पाते थे एंड डैड बिकॉज ही वॉज अ वेरी लर्नड मैन वो उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पा रहे थे फैक्ट्री में एंड फिर दूसरे लोगों से भी सुनते हैं कि योर डैड इज सच अ गुड इंजीनियर तो उससे भी एक लगता है कि इंस्पिरेशन आती है तो आई वुड से माई डैड वॉज माई रोल मॉडल जिस कारण से आई परस्यूड इंजीनियरिंग तो फॉर दैट आई स्टडीड वेरी हार्ड एंड आई वेंट टू यूएस फॉर माई अंडर and ये तो decided था that I would be doing my engineering in mechanical engineering because a lot of processes are very connected. So I completed my mechanical engineering, and there, fortunately, I was working very hard, and I was the topper at the university there. And because of that, I had a good chance to get placed in Bell Helicopters as well. But at that time, because my education got a little late because US में admission का थोड़ा problem रहता है, so I wanted to get into good university, so I delayed my education. And वक्त ऐसा बैठा that one of our new plants were getting commissioned. So my dad was like, either you can work there or you can come back. But if you come back, it would be an opportunity of a lifetime because you can actually see commissioning of a new industry. And that is the best time to learn. So that is why I decided that 2 years of experience over there would not matter that much as I would learn. It would give me a 10 years head start. क्योंकि commissioning होते वक्त जो सीखते हैं that would be a excellent learning opportunity that I would not get until and unless मैं खुद एक नई फैक्ट्री कमीशन करवाऊं
तो आई केम हियर, मैंने बहुत सारी प्रोसेसेस वहां से भी कंपेयर किया, आई यूज्ड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स दैट आई डिड देयर, आई इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर। एंड सर आते से तो माय फोकस वाज नॉट कि ये एलिमिनेट कर दो, ये कर दो, मेरे तरीके से चलेगा। द 6 मंथ्स आई रियली आई फोकस्ड कि क्या चल रहा है। फिर मैंने उनको नए मॉडर्न प्रोसेसेस से कंपेयर किया, रेट्स को रिमूव किया। तो माय डैड वाज आल्सो कि हाँ बच्चा पढ़ के आया, मतलब ही वाज नॉट पासिंग टाइम ओवर देयर। So that developed a lot of trust in my dad as well, because he saw that I understood the processes that were going on and the new technology that has just come up. And I compared and I chose between the best part. I was not very adamant कि मैं जो सीखे हूँ वही implement करेंगे. So in this process, my dad developed good trust on me. So when after the commissioning, when the time was right, when he wanted, मतलब फिर मैंने धीरे धीरे सीखा how the processes are actually done, how sales are got, and at the same time हमारी दूसरी फैक्ट्रीज के अंदर सेल्स परचेज और वो सब रेगुलर काम तो चल ही रहा था। तो आई वाज फोकसिंग ऑन दैट। तो दैट इज द ट्रांजिशन जर्नी जहाँ से मैं यूएस से पढ़ के आया, एंड देन आई स्टार्टेड फैमिली विद माय फैमिली बिजनेस। Vedansh, there are two questions जो इसमें से emerge हो रहा है. First of all, तो my sincere appreciation to you. Okay, the reason why sincere appreciation, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एक जॉब का अच्छा स्कोप वहां मिल रहा था. But for all the wonderful listeners, all the wonderful people who are listening this, please note this, कि कोई बिजनेस का कमीशनिंग स्टेज पे आपको जो लेसन मिलेगा रादर देन अ कंटिन्यूइंग बिजनेस से, इन दोनों में बहुत फर्क है. Commissioning business means, yeah, commissioning a plant means you have to go through a lot of teething trouble. When you go to teething trouble, तुमको मालूम पड़ेगा कि यदि फ्यूचर में कभी ऐसा प्लांट सेटअप करना है, ओके, मशीन में ये प्रॉब्लम, ग्रीस में ये प्रॉब्लम, ऑयलिंग में ये प्रॉब्लम, इरेक्शन में ये प्रॉब्लम, बंदे का ये प्रॉब्लम, पावर का ये प्रॉब्लम, इतनी सारी चीजों को, अच्छा बेस कितने का बनाना चाहिए, कितने टन का वजन सपोर्ट करेगा, यदि वो दीवार पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, वो बेस पे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. So that's a very, very important point that Vedansh has mentioned, and that does carry a lot of weight, guys. That does carry a lot of weight. क्योंकि यदि वो वहां पे ज्वाइन कर लेता तो शायद उसका level of learning would have not been like this. So that is my first thing. So I sincerely appreciate that, Vedansh, and that's the reason I said. And मेरा जो क्वेश्चन उसके साथ इंक्लूडेड था वो मैं तेरे को पूछना ये जा रहा था कि Vedansh, when this new plant got commissioned and you got involved in its process of erection and then commissioning, what made you go towards the sales which was already going on for the other plant? मतलब तुम्हारा inclination क्यों हुआ sales या उस तरफ जाने का? Can you throw some light on that? So there was a very interesting thing that happened. So we introduced a lot of new products with this new plant. Okay. And because I was involved with the development of the products on very grassroots level, so my dad knew that I know what is the specialty of the product that we are making, and who would be the better person to actually market it. Like right now हमने जैसे इसके अंदर pulses हैं, pulses सब जने खाते हैं, but sir, there is this thing in India that a lot of people in the household don't even know what dal which is. So because I was involved in the development of the new product, कि इसको कैसे process करेंगे, there were new technologies that were going around, we incorporated it. So because I was part of the commissioning team, I had interacted with the corporators and the जिनसे हमने technology adapt की है, तो I was very integral part of it. मैं उनसे पूरा समझता था कि ये वाली प्रोसेस क्यों ले रहे हैं, ये वाली मशीन का क्या बेनिफिट है, and then I could actually compare our product with the ongoing product that is already being sold in the market. तो दालें भी जैसे 10 टाइप्स की है, तो अभी तक हम 5 टाइप की दाल्स बना रहे थे फॉर एग्जांपल. सो दिस वाज 6th and 7th इन आवर फोर्टे. तो वी हमारी फैमिली के अंदर भी उन चीजों का इतना नॉलेज नहीं था, तो इट वाज कंप्लीटली न्यू. So that is why my family pushed me in the marketing and the sales part of this new product. You decided to join the GFMB program. You're already an engineer. You're learning a business also from your father, who is also an engineer. In fact, you belong to the family which is into business. तो तुम तो बिजनेस सीख ही रहे थे. तो GFMB प्रोग्राम क्यों आए? नंबर वन. एंड नंबर टू, उसमें से तुम्हारा लर्निंग क्या निकला? यू कैन सेग्रीगेट बोथ द क्वेश्चंस इन द वे यू वुड लाइक टू, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट why did you join the GFMB program. Chalo, let's go look at the first one. So
in my opinion, I'll very frankly share my opinion with you. For me, GFMB was not only a program, it was Okay. an experience in itself. For me, what happened when I joined GFMB, when a sir, मैं आपको frankly बताऊं तो what happens with a person who joins family business and who's second or third generation family business person like me, हम सर बहुत हवा में होते हैं. हम हर चीज को अपनी विरासत समझते हैं. पहली Wow. बार आया था सर मैं क्लास में, और माय गुड फ्रेंड राजीव सर के साथ उसने बोला था कि आई वांट टू टेक ओवर माय फैमिली बिजनेस. तो राजीव सर ने उसको डांटा था. एंड सर पहला हफ्ता है, सब हम सर अब बिजनेस पीपल फैमिलीज हैं. इंदौर के अंदर वी आर वेरी कंफर्टेबल, यहाँ पे तो हम जो बोलते हैं वो हो जाता है. और पहली बार जब डांट पड़ी कि तू टेक ओवर कैसे कर सकता है, ये कोई चीज नहीं है टेक ओवर करने की. सर ने इतना प्यार से समझाया कि आप एसेट्स टेक ओवर कर सकते हो. फैमिली बिजनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आपको आगे. सर दैट 5 मिनट्स वो डांट उनको रहे थे, लाइफ मेरी चेंज हो रही थी. तो सर जीएफएमबी, इट्स नॉट ओनली अ प्रोग्राम फॉर मी, इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर मी. एवरीथिंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने जीएफएमबी ज्वाइन तो सर इसलिए किया क्योंकि एक्चुअली माय बिग ब्रदर इज आल्सो एसपी जैन एल्यूमिनाई, वो पुराने इसमें थे. एंड Hmm. उन्होंने डिसाइड कर ही लिया था कि तू कहीं से भी कुछ भी एजुकेशन करके आ जा, तुझे ये कोर्स तो करना ही है. बिकॉज ही एक्चुअली फेल्ट द डिफरेंस दैट ही हैड, द विजन दैट ही हैड बिफोर एसपी जैन एफएमबी एंड आफ्टर ही हैड. एंड वो तो बोलते थे मैं तो फिर भी काफी बिजनेस ओरिएंटेड हूँ, तू तो बिल्कुल एक इंजीनियर है, तू बिल्कुल उसी हिसाब से सोचता है, एक पेज पे प्रोज एंड कॉन्स बनाता है और उसके बाद काम करता है. बट बिजनेस इज नॉट दैट. वो मुझे बोलते थे कि मैं कभी नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन जब तू क्लास में जाएगा, जब अपने साथ दूसरे बिजनेस पीपल को देखेगा, और हर चीज की फॉर्मल ट्रेनिंग होगी, सब बात करना, एक्सपीरियंस लेना, बट एवरीथिंग. अपने मुराडियन सर कहते हैं कि डेटा डेटा एनालिसिस, व्हाट इज रिकॉर्डेड गेट्स वर्कड अपॉन. So when you see everything formally organized, and when you see that business can also be formally organized, and it's मतलब उसको पढ़ा जा सकता है, उसको सीखा जा सकता है. तो दैट चेंज्ड माय लाइफ. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इंजीनियरिंग सीख सकता हूँ, बिजनेस सीख नहीं सकता हूँ, ये कुछ मेरे अंदर है. बट नो, एवरीथिंग कैन बी वर्कड अपॉन एंड कैन बी डेवलप्ड. सो दैट इज व्हाई एसपी जन मैंने ज्वाइन भले भैया के कहने से किया, बट इट चेंज्ड माय लाइफ. इट वाज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ फॉर मी सर. Okay. So you answered the question why you joined. Now you have to answer what are your learnings from the GFMB program? सर तो पहली लर्निंग तो मैंने बिल्कुल हाँ, शेयर करी आपसे कि जो हम हवा में रहते हैं, तो ये प्रोग्राम का सबसे ग्राउंडेड हो गया. ग्राउंडेड कर देता है सर. मतलब यू अंडरस्टैंड दैट. नो, आप आज तक मतलब आप अपने घर के लाड़ के बच्चे थे, बट नाउ यू आर स्टेपिंग इनटू द रियल वर्ल्ड, एंड देयर आर पीपल जस्ट लाइक यू हु आर मोर हार्ड वर्किंग, हु हैव वे मोर रिसोर्सेज देन यू, एंड यू हैव टू compete with them, and who are way more mature and actually working towards it. So Hmm. this grounding feeling was the first learning part that I got from FMB. Moving on from that, sir, जैसे जीएफएमबी प्रोग्राम की सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, एवरीथिंग. आप किसी भी बिजनेस में हो, बीट ऑपरेशंस, मतलब बीट मैन्युफैक्चरिंग, बीट सर्विसेज, बी whatever you want, उसके अंदर देयर इज एन फॉर्मल थिंग फॉर एवरीथिंग. Hmm. अगर जैसे आपको ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन इम्प्लीमेंट दैट. इफ यू वांट सम दैट नेगोशिएशन में प्रॉब्लम आ रहा है, स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, सब परिमल सर की जैसे बात है, तो परिमल सर सिखाते हैं कि आप ये क्यों सोचते हो कि आपके पास जो है वो बहुत है. अपन क्या सर, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमारी फैमिली के अंदर भी ये बात थी, बहुत मेहनत करा, बहुत अच्छा कमा, एक फैक्ट्री की 2 फैक्ट्री कर ली, 2 फैक्ट्री की 4 कर ली. परिमल सर सिखाते हैं एक की 10 क्यों नहीं. एंड व्हेन यू सी रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड उनको डिस्कस करते हैं, उनको एक प्रेजेंट किया जाता है आपकी आंखों के सामने, और आप देखते हो कि वो भी जहां आप थे वहां से स्टार्ट होके 1 से 1000 पे गए, और आपकी सोच ही 1 से 2 की है. तो ये जब सारी चीजें अपने सामने फॉर्मली प्रेजेंट होती है सर, सबसे पहले तो समझ में आता है कि अपन कौन है, अपन कुछ नहीं है. फिर समझ में आता है नहीं, अपन है कुछ और अपन ये कर सकते हैं. Correct. तो दिस वाज द मेजर लर्निंग. एंड उसके अलावा थर्ड थिंग दैट आई मेजरली लर्न फ्रॉम जीएफएमबी वाज एवरीथिंग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. जो अपने बिजनेस के अंदर अपन लोगों ने जुगाड़ बिठा रखी है. परिमल सर बोलते हैं, एक बार मुझे उनकी क्लास का डायलॉग याद है कि वो एक बिजनेस में गए थे, बोला आप सर आप इस चेयर पे क्यों बैठते हैं. तो द बिजनेस पर्सन आंसर्ड कि मैं चेक साइन करने के लिए बैठता हूँ. तो परिमल सर बोलते हैं आप मुकेश अंबानी को देखिए,
क्या वो चेक साइन करते हैं, क्या वो डील करते हैं, बट उनके सारे सिस्टम्स आर इन प्लेस, दे आर वर्किंग. तो व्हाई कांट वी डू दैट? आज मैं भी बिजनेस के अंदर यही बोलता हूँ कि नहीं, मैं देखूंगा, मेरे बिना कुछ भी मत करना. परिमल सर ने समझा नहीं, आप स्टाफ को सिखाओ, वो करेंगे, so that you can be involved in other things. So Correct. that was my third learning कि be organized. ये जुगाड़ हटाओ बिजनेस में से and be organized, make systems. Fantastic. So, in other words, what you want to say is let the process work, not the people. नहीं तो यदि ओनर ही काम करता रहेगा तो कल को बिजनेस माइनस द ओनर, द बिजनेस विल क्लोज डाउन. पर यदि Correct. सिस्टम या प्रोसेस काम करेगा तो कल को ओनर रहे नहीं रहे फिर भी इंडस्ट्री या बिजनेस चलता रहेगा. चलता रहे. Brilliant point, बिल्कुल super. बिल्कुल सर. Okay, Vedansh, that takes me to one more question. What is your take on your interaction with your alumni? What is your learning from your batchmates, your alumni now? What is your learning from them? So alumni, तो Menon sir actually used to invite a lot of alumni, and he used to share the real world experiences जो उनके साथ हुए थे, and a lot of people तो बिल्कुल ऐसे थे जिनसे हम बिल्कुल कनेक्ट कर सकते थे. देयर वर कपल ऑफ अलुमना जो तो हमारी एज के ही थे, दे वर नॉट वेरी एल्डर टू अस. तो जो हमारी एज के थे, एंड व्हेन वी लर्न देयर स्टोरी, व्हेन वी सॉ दैट एक जना था जिनका मतलब यू नो ही हैड अ प्रॉब्लम ऑफ इवन गेटिंग अ फंडिंग ऑफ 10 CR, लाइक हिज फैमिली वाज प्रॉब्लम, एंड ही एक्चुअली turned that funding into 80 CR. And then there was this learning of in the guy who actually started selling his products on Amazon, and उनको भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आई. ही वेंट टू हिज डैड, अमेजोन पे बेचना है, नहीं हम नहीं बेचेंगे, क्रेडिट पे तो माल देना ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, टीवी चला गया, एक बार चला गया. एंड देन हाउ वी स्टार्टेड, एंड देन हाउ वी टर्न्ड इट अराउंड, एंड हाउ इट वाज मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली बात थी. और सारी सेम प्रॉब्लम्स. आज भी मैं पापा को बोलता हूँ, पापा इस पार्टी को माल देना है, नहीं 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 नहीं, देना ही नहीं है. But how he convinced, and sir, actually, most of the alumni, or I would rather say all of the alumni, they were so grounded. कोई भी ऐसा नहीं बोलता था कि मेरे पापा समझते नहीं थे. सब ये बोलते हैं कि इवन द आशंकाएं जो अपने पिताजी को आशंकाएं रहती है, अपने फादर्स को आशंकाएं रहती, दे आर ऑल वेरी राइट, because they have faced that at certain points. Correct. So that is why they are how they are right now, because of their experiences. Correct. So अपन उनको भी अंडरस्टैंड करो, साथ ही साथ छोटे रिस्क लेके स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करो. सो दैट वाज द मेजर लर्निंग्स दैट आई हैड फ्रॉम एलुमनाई, वाज दैट ऐसा नहीं है कि दूसरों को ये प्रॉब्लम नहीं आती है, सबको ये प्रॉब्लम आती है. फेस करो, स्टेप बाय स्टेप चेंज लाओ, बी रिस्पॉन्सिबल, अर्न देयर ट्रस्ट, एंड देन मूव फॉरवर्ड. करेक्ट. पर वेदांश, मेरा क्वेश्चन, अच्छा ठीक है तूने राइट आंसर किया है, पर मेरा क्वेश्चन एक्चुअली इस तरफ नहीं जा रहा था, कंप्लीटली थोड़ा डिफरेंट जा रहा था. आई एम नाउ आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर लर्निंग फ्रॉम योर अलुमनाई? तुम्हारी बैच के जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, अभी आज समझो तुम इंदौर में हो या कहीं बाहर के भी हैं तुम्हारी बैच के, तो दे आर ऑल स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, राइट? ऑब्वियसली कोर्स खत्म होने के बाद तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो टच में हो ही हो. तो योर लर्निंग फ्रॉम तेरी बैच के अलुमनाई, मतलब जो को बेंचर्स थे, उनकी बात कर रहा हूं. So I have actually seen people, just I तो was involved in my family business for a healthy 2 years or 3 years of time, and after that I joined DFMB. But I have seen in my batchmates who have developed from people who did not understand a thing about their business into people who are now not only integral part of their business but are running it successfully. Like there were a couple of students जिनको अपने business के बारे में ज़्यादा idea नहीं था. So after this course, active participant of the business first of all, कि क्या चल रहा है, they learned it, and after that they became part of the process, and now they are running the show. Like it has been 1.5 years since we all are graduated, but now I can see the change in them after this program. So recently I will tell you, like Sandesh Agrawal, he's a very dear friend, he's from Indore as well. Yeah. So उनकी फैमिली में बिल्कुल it was the same concept that that was a little strict about his policies of business. He came into the business, and it is a very actually interesting story. So he came into the business, and he is into trading of yarn. So yarn जिससे पूरा कपड़ा बनता है, he's into trading of that. And till that point of time, till he joined SP Jain, I could see that he actually hadn't earned a lot of trust
you can say from his dad. His dad still considered that he's someone who's learning. So he went back. The program concluded. He went back. They were looking for some new people to whom they could sell the product to, and he got connected to Dollar undergarments जो आते हैं. They were also, I think, SP Jan alumni as Yes. well. So he got connected to them, and he tried to approach them, and he tried to sell the product to them, and eventually things, first of all, they didn't work out. But his dad was very ki हाँ बिल्कुल try करो, you know, you are trying to do something. Hmm. And he shares the experience with me that during the entire lockdown, because only a few of the multinationals were working, entire lockdown के अंदर they were, all the product they had, they were selling it to the dollar. मतलब because उस समय पे छोटी इंडस्ट्रीज तो सारी बंद हो गई थी ड्यू टू लॉकडाउन, एंड ओनली बिग प्लेयर्स वर रनिंग द शो. तो entire lockdown के अंदर they made more profit rather than what they would have made in the entire year. So that's how, you know, I could see कि even he earned the trust of his father. अभी मैं recently, मतलब recently क्या कल ही मिला था उससे, तो he Oh, shared the same experience with me कि यार after this thing I can actually see that my father, I have some level of respect in my dad's eye, because now he also understands that I have joined the business and I am working towards it. I am working towards developing it. फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ब्रिलियंट पॉइंट वेदांश, ब्रिलियंट पॉइंट. मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर लिसनर्स कि कोई बंदा पहले सेकंड पे पहली मिनट पे सक्सेसफुल नहीं होने वाला है. एंड दूसरा, ऐसा एक्सपेक्ट करना ये जो करने वाला है उसकी मिस्टेक है. इट इज नॉट द फादर और द अंकल और द मेंटर्स मिस्टेक, बिकॉज यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द फर्स्ट गो. यू हैव टू मेक एन एफर्ट, नंबर वन. नंबर टू, ए रिपीटेड कंसिस्टेंट एफर्ट, कि आज ट्राई किया, कल बंदे ने ना बोला, कोई बात नहीं, फिर दोबारा, फिर दोबारा. I will ask Vedansh to narrate one of his incident, which is one of my favorite incidents. But he has narrated this incident on couple of occasions. एंड इनफैक्ट वो इंसिडेंट ये बताने के लिए सीधा मुझे रूम में मिलने आया था, यहाँ पे एसपी जैन पे. बोलता सर ये बात तो आपको सुननी पड़ेगी. मैं बोला बेटा क्या हो गया, एंड इट वाज आफ्टर द क्लास ही हैड कम. तो मैं बोला ठीक है, एंड देन ही नरेटेड दैट. आई एम आस्किंग हिम टू नरेट दैट स्टोरी फॉर द गुड, फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिसनर्स. यस वेदांश. So as I told you, we are in this business for last 40 to 50 years. So in 1990s, we had this client who everybody must have heard of, the Lijjat Papad. They're a very famous papad brand of India and very loved ones also. So during 1990s and 2000, we had good amount of business with them going on, but eventually it got discontinued and their management changed and everything. So once I was like, मैं मुंबई आता ही था, and लिज्जत पापड़ का मुंबई में हेड ऑफिस है. तो my dad just once mentioned क्या लिज्जत पापड़ अपना बहुत बड़ा कस्टमर था एक टाइम पे. तो मैंने बस वो पकड़ लिया, बहुत बड़ा था क्या होता है, अब क्यों नहीं है. Whatever be the circumstances in 2000, times have changed. So I went to them. मैंने फोन किया. देयर वर कपल ऑफ कॉन्टैक्ट्स में मैंने फोन किया कि व्हाट शुड आई वांट टू कम फॉर अ मीटिंग, आई वांट टू कम फॉर अ मीटिंग फॉर द सेल्स पर्सन. तो दे डिडंट रिस्पॉन्ड बिकॉज ऑफ कोर्स इतना बड़ा ब्रांड है, से दो ऑलरेडी हैव सप्लायर्स. मैं सर के पास गया, सर से पूछा सर मैं क्या करूं. सर ने बोला चाय पीना आती है तो चले जाना, तू वेटिंग एरिया में चाय पी लेना. तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग फॉर द नेक्स्ट कॉन्टैक्ट, मैं सीधे उनको ऑफिस का एड्रेस निकाला और जाना चालू कर दिया. पहले कॉन्टैक्ट में गया, आई यूज टू गो 2 टाइम्स. एक बार आने से पहले जब कॉन्टैक्ट स्टार्ट होता था उसके पहले, और जाता था उस दिन वापस जाता था. तो दोनों बार वेटिंग एरिया में बिठा दिया. एक महीने बाद फिर चला गया. तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है आपको बोला ना फोन करके आने का, मैडम नहीं है. मैंने बोला मैडम कोई बात नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, चाय पिला दीजिए. सो आई हैड, एंड द नेक्स्ट टाइम दैट आई वेंट, उन्होंने बोला रुको रुको मैडम है, मैं करवाती हूँ आपकी मीटिंग. सो आई वेंट इनटू द, हमारी मीटिंग हुई. मैम ने बिल्कुल रिस्पेक्टफुली मुझे डिनाई कर दिया, बट द गुड थिंग आई गॉट हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एवरीथिंग. आई यूज्ड टू टेक्स्ट हर, वी यूज्ड टू कनेक्टेड. उसके अगले बार जब मैं मिलने गया, मैडम ने बोला तू 2 गाड़ी तो भेजी दे. इट स्टार्टेड फ्रॉम दोस 2 trucks. It started from those 2 trucks, and it has been 2 years. They are like consuming a major part of our product from one of our factories, and it is going on. Eventually we are now supplying to their a lot of branches, because Lijjat Papad is a, so मुंबई से स्टार्ट हुआ. मुंबई के अंदर वो मैडम ने ही मुझे जबलपुर वाली मैडम को रिकमेंड किया कि ये बच्चा अच्छा है, आपके पास में भी पढ़ेगा, आप इससे लीजिए. सो एंड दे आर लाइक
they are at age of 50-60 and वो मुझे बिल्कुल बच्चे जैसा ट्रीट करते हैं, हाँ वेदांश प्रोडक्ट मिल जाएगा, and I feel so good because it was a determination into success story that I would say. And सर ने बस ये बोला, बस लगे रहो मुन्ना भाई, काम हो जाएगा. एंड जिस दिन मुझे वो 2 ट्रक का मैडम ने ऑर्डर दिया, माय कॉन्टैक्ट वाज गोइंग ऑन, मैं सर के पास आया, सर ये तो सुनना पड़ेगा. I still remember that. So therefore, but no. The more important part is, or the stress area in this whole thing is कि guys, ये बंदे के पास चॉइस था ना, फोन करके छोड़ देता, 2 मीटिंग के बाद छोड़ देता, आके मेरे को बोलेगा सर बहुत चाय पी लिया. मैं बोला बेटा बहुत कहाँ हुई है, 1990 का कस्टमर है, 2000 का कस्टमर है, तू अभी 17 में है. 17 साल का जो लेयर है उसको एलिमिनेट करने का है ना. गाइस, बिजनेस में एक फोन से, एक एसएमएस से काम नहीं होने वाला है. यू हैव टू गो. चाय पियो, बंदे के साथ बैठ के चाय पियोगे, 110% कुछ ना कुछ लाभ होना ही है. एंड लाभ नहीं तो एटलीस्ट कनेक्ट. इसने क्या बोला, पहले कहां ऑर्डर दिया था, बड़ा रिस्पेक्टफुली मना किया. इफ यू हर्ड हिम प्रॉपर्ली, उसने बोला रिस्पेक्टफुली मना किया, मतलब ऐसे बोला होगा, बेटा वेदांश जा, ऐसा बोला होगा. दैट्स ओके. All right, Vedant, that's a very interesting thing, very important. And the reason I asked you to narrate this is, as I said, this is going to go on YouTube. We're going to younger people get an advantage of learning from another younger person. कि नहीं बस ये उम्र पे भी लोग इतना तो पैर क्या कहते हैं, चप्पल रगड़ते ही हैं, तो फिर यार करना बनता है. Okay, Vedant, that takes me to the second last question of the session. Okay, what would be your message to all those youngsters who are on the periphery of joining the family business or not? So the first thing that what I think is that a lot of students or the people who are joining businesses, if they are वो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, वो ये सोचते हैं कि इनके लिए एक ऑप्शन है, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे ना करे, ये एक ऑप्शन है. ऑफ कोर्स ऑप्शन तो है ही, नहीं करना है. व्हाट आई फील दैट हु दे आर टिल नाउ, आप लोगों ने अभी तक अपने फैमिली बिजनेस के बेनिफिट्स तो रीप करें, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए. लाइक दैट इज द फर्स्ट मैसेज टू मी. आपको नहीं ज्वाइन करना, आप मत ज्वाइन करो, दैट इज करेक्ट, बट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट ज्वाइनिंग बाय अ चॉइस, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपने आज तक, आप इस बिजनेस से एसोसिएटेड हो, आप जहां पे भी रहते हो, लोग आपको उस तरह से रिस्पेक्ट देते थे, और आज जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आया, यू कैन जस्ट नॉट टर्न योर बैक ऑन इट. एंड सबसे बड़ी बात जो लोगों के मन में रहती है, दैट आई रियली डोंट अप्रिशिएट, इट्स माय ओपिनियन, वो बोलते हैं कि मुझे खुद का कुछ करना है. अरे वो पिता तुम्हारे ही हैं, वो बिजनेस आपका ही है, वो फैमिली आपकी ही है. जिस दिन ये खुद वाला वर्ड हट जाएगा ना, मुझे हमारा कुछ होना चाहिए, तो उसके अंदर योर फादर, योर ग्रैंडफादर, योर फैमिली, योर चाचा, योर ताऊजी, दे हैव वर्कड सो हार्ड टू डेवलप समथिंग, एंड उसके बाद आप बोलो कि मुझे खुद का कुछ करना है, तो that does not make sense. You are just being too proud on yourself for nothing, for no reason. इसके ऊपर एक लाइन ऐड कर सकता हूँ. बिल्कुल सर. ये खुद लोग, ये जो लोग हैं वो खुद भी मेरे ही है ना. हाँ, of course. तो जब लोग ही मेरे हैं तो ये बिजनेस खुद का ही हो गया ऑटोमेटिकली. द अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. And apart from that sir, that's the beauty of business. आप आपकी लाइफ के 2-3 साल उसको सीखने में दो. आप इंजीनियरिंग डिग्री में 4 साल देते हो, और जो आप बोलते हो कोई काम नहीं आ रही, एमबीए में 2 साल देते हो, तो आप आपके बिजनेस को भी 3 साल दो ना. देन यू कैन टेक इट इन एनी डायरेक्शन यू वांट. You want to wrap it up and go in another direction, learn it, see the pros and cons. आपके फादर ने इतना डेवलप किया, but if you see that it's a dying industry or something like that, wrap it up. CFL वाले भी wrap up करके LED पे move on हुए, कैमरा वाले भी वो रील वाले कैमरा से डिजिटल कैमरास पे आए, जो नहीं आए वो वहीं रह गए. तो if you feel like it's a dying industry, learn it, give 2 years. 80 साल की लाइफ में 2 साल अगर आपने दे भी दिए तो कुछ नहीं होगा. 2 साल तो रिलेशनशिप में दे देते हैं लोग. So wrap it up and go, take it in any direction you want. It's yours to take it. So लोग बोलते हैं मेरा पैशन नहीं है. बिजनेस है, बिजनेस इंक्लूड्स एवरीथिंग. आप पिक्चर बनाओ, एक्टर बनो. आज की तारीख में सर एक्टर भी बिजनेस पीपल ही होते हैं. Everybody is business people, in my opinion. Absolutely. And take it in any direction you want, but at least उसको learn तो करो. उससे ऐसा पल्ला झाड़ के मत जाओ यार. It's your responsibility, it's your identity. Superb, Vedant. That was awesome.
but business is the first thing that connects us. And Wow. because we all want betterment of the business, there are circumstances, there are certain situations in which I would think कि इनका तरीका बिल्कुल गलत होगा और मेरा तरीका बिल्कुल सही होगा. And for him it's the exact same scenario कि वेदांश का तरीका बिल्कुल गलत है और मेरा तरीका बिल्कुल सही है. So growing together, developing the thought which would be better for the business, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को साइड में रख के, इट्स सब बोलते हैं ना, वर्किंग टुवर्ड्स अ ग्रेटर कॉज, वो वाली फीलिंग फैमिली बिजनेस के अंदर आती है कि मैं गलत हूं, मैं सही हूं, मेरा डिसीजन सुना जाए नहीं जाए, लेकिन बिजनेस के लिए क्या सही है वो डिसीजन इनकॉर्पोरेट हो. सो the biggest learning that I get being a part of family business, I'm not saying as a business person or as a student, but being a part of family business, I would say, is the biggest learning experience that I think is that how do you work towards a greater cause. अपने से ऊपर कोई कॉज है. आज हमारी विजय पल्सेस का हमारा ग्रुप है, वेदांश पल्सेस हमारी उसमें यूनिट है, तो आज मेरी बात सुनी जाए नहीं जाए, मेरा नाम हो नहीं हो, बिजनेस का नाम होना चाहिए. तो ये वाली सोच जो है जिसके अंदर आदमी खुद को किसी कॉज के लिए सरेंडर करता है, तो दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग आई फील दैट आई हैव बीइंग अ पार्ट ऑफ फैमिली बिजनेस. ब्रिलियंट ब्रिलियंट, दैट्स सुपर्ब सुपर्ब. गाइस एक चीज याद रखना, वेदांश ने एक लाइन बोली है, वो लाइन टच कर गई है. आप चाहे जितना भी डिफरेंट सोचो यार, आप सबको बांधने वाली एक ही चीज है, वो आपका फैमिली बिजनेस है. अब ताऊजी होए, बड़े भैया होए, छोटे भैया होए, चाचा होए, पप्पा होए, चाहे जितना भी डिफरेंस कर लो, धागा तो एक ही है और उस धागे का नाम है फैमिली बिजनेस. और यदि वही आपको जोड़ सकता है तो फिर आपको अलग होने का कोई गुंजाइश, स्कोप है ही नहीं. रादर हम सब उसके अंदर जुड़े हुए हैं और वही हमारा धागा है जो हमको जोड़ता है. वेदांत, सुपर पॉइंट, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, दैट्स वंडरफुल. That brings us towards the end of this session, guys. It's already 5:38, Vedansh, and we started at 5:01 exactly. And a brilliant 35-minute interaction with one-to-one with Vedansh Gupta of Vedansh Pulses. It was wonderful, Vedansh, to have you here. And trust थैंक यू me, सर, इट वाज beta, माय ऑनर. trust me, it was a fantabulous interaction. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you for having me. Thank you. Right.